जो शेयर करनी है वो सब कर दीजिए, ये रिकॉर्ड हो गया बैकग्राउंड में। सेव कहाँ होगा? माय वीडियोज में। Yes, students. Am I audible to all of you? You can comment. Just comment. Any one of you. Okay. As we have already discussed about some numerical problems, as numerical number 1 and 2, these two numericals are discussed, and third also, 4th, 5th and 6th. Let us discuss 4th one. The electric current flowing in a wire in the direction from B to A is decreasing. Find out the direction of the induced current in the metallic loop kept above the wire as shown. A wire is given shown there, and a ring is kept over the wire. If current is decreasing and it is flowing from direction B to A, and if it is decreasing from B to A, definitely the magnetic field will towards the right side of the wire, the magnetic field will decrease. Then the induced currents are such that it increases the magnetic flux. To increase the magnetic flux, it should support magnetic field produced due to wire. And as we all know, right side of the wire magnetic field is inwards. Therefore, the sense of current in coil must be such that it will produce a magnetic field inwards, and it happens only when the current flows in clockwise sense. Therefore, the direction of current in ring, the direction of induced current in ring should be clockwise. Now, second one, that is 5th one, a conducting loop is held above a current carrying wire PQ. As shown in figure, depict the direction of the current induced in the loop when the current in the wire PQ is constantly increasing. And if it is increasing, if current is increasing, now it is towards left side of the wire, or you can say the ring is kept above. In both the cases, question number 4 and 5, the ring is kept above the wire, but in first case direction of current is right to left, in second case it is left to right. Therefore, now the current is increasing in rightward direction. And if we think about the sense, if your face is towards the flow of current, the upside is left side and the downside is your right side. ऊपर वाली जो है जगह वो लेफ्ट की तरफ होगी और नीचे वाली राइट की तरफ होगी. और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वायर के? पॉइंटेड होगा, बाहर की तरफ होगा. और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है. इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन खुद क्या होगी? वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है उसको डिक्रीज़ कर सके. तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज. क्योंकि जब कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, जबकि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है. तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे. इसलिए केस नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज. और अगर इसी वायर को आपने रखा और लूप को नीचे कर दिया, तो जब आप लूप को नीचे कर देंगे तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी अपोजिट हो जाएगा. सेम क्वेश्चन है, केवल आप देखें डायग्राम में, यहाँ पर जो है सर्कल को ऊपर रखा गया है और यहाँ पर जो है सर्कल या रिंग को नीचे रखा गया है. तो यहाँ अगर क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो दूसरे केस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. रीजनिंग और रीज़न बिल्कुल सारे वही होंगे जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया. आपको लेंस लॉ अप्लाई करना है किसी भी केस में, और लेंस लॉ अगर आप अप्लाई करते हैं यू विल फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट ईजिली. देन
अगर दो लूप्स हो यहाँ पर तब कैसा होगा, तो इसमें भी आप देखें ऊपर वाले में जो है क्लॉकवाइज और नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट के ऐसे क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं। नाउ द लूप इज of wire is moved into a uniform magnetic field at right angles to the plane of the paper as shown in the figure। आई होप कि स्क्रीन आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। और क्रॉस्ड फील्ड है और इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप को अंदर की तरफ लाया जा रहा है। पूछा गया है कि रेक्टेंगुलर लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए आंसर आपके पास है। आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? अंशिका बताओ बेटा, तो कैसे ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी? आई एम टॉकिंग टू अंशिका चौहान। अंशिका चौहान बताइए बेटा कैसे होगा? Yes, Anshika. There are some network issues, Anshika. बेटा आप लोग ज़रा बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बाकी लोग बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ओके, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। कैन यू Anshika, can you see the question on screen? Okay, the closed loop PQRS of wire is moved into a uniform magnetic field at right angles to the plane of the paper as shown in the figure. Predict the direction of induced current in the loop. At right angle, what is at right angle? Not loop is at right angle. Magnetic field is at right angle into the plane of the paper, crossed magnetic field. And in this uniform magnetic field, a rectangular loop is kept inside the magnetic field. It is you are bringing a rectangular loop inside the magnetic field. You have to give the direction of current produced in the loop, whether it is clockwise or anti-clockwise, and as answer is already given anti-clockwise, I want only explanation. How can you explain that the direction is anti-clockwise? सर जो हमें ये लग रहा है कि जैसे मैग्नेटिक डिवाइस का मतलब अंतर तो है ना, सर मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इंटरस्टेलर अगर उसमें हो जाए तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड बाहर से भी जनरेट हो जाए। तो सर मतलब मुझे मतलब अंदर का मैग्नेटिक फील्ड और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक चीज को अपोज करेगा। तो सर क्या ये रीजन हो? हाँ, काफ़ी हद तक आप क्लोज हैं। चलिए मैं किसी और बच्चे से भी पूछ लेता हूँ। वैभव राधवान, कुछ एक्सप्लेन करोगे बेटा कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगी, और या कि कहीं एंटी क्लॉकवाइज गलत तो नहीं है? आपका आंसर और आपका एक्सप्लेनेशन। आदित्य मिश्रा, डोंट लिफ्ट द मीटिंग। वैभव बताओ बच्चे। आप बोलिए, कैसा भी हो, गलत सही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलिए बेटा। इस वैभव इज देयर? पता नहीं सर। नहीं पता है, ओके कोई बात नहीं। विशाल है, शिवम है, कोई और बताना चाहेगा? यू कैन ओपन योर माइक, वहाँ से बता सकते हैं, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। साफ है वो गिलास, मैं बताऊं? कमेंट कर दीजिए। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। देखिए, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है,
फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब कॉइल को आप अंदर की तरफ लाएंगे तो कॉइल का इफ़ेक्टिव एरिया बढ़ेगा, यानी फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा। तो फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा है, इस वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। अंशिका ने बिल्कुल सही कहा था कि दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है वर्ड्स की परेशानी थी वहाँ पे। जब फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा तो फ्लक्स को डिक्रीज़ करने का क्या तरीका हो सकता है? एरिया तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप अंदर आ रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी हो कि वो जो अप्लाइड फील्ड ऑलरेडी है, जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, उस फील्ड को अपोज करे। तो अगर क्रॉस्ड फील्ड है तो पी क्यू आर एस में करंट ऐसा फ्लो करेगा कि ये पॉइंटेड फील्ड प्रोड्यूस करे। पॉइंटेड का फील्ड का मतलब, अगर अप्लाइड फील्ड इनवर्ड्स है तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? राइट एंगल्स पे आउटवर्ड्स होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो। इज इट ओके? यस सर। सर यहाँ पे भी लेंज लॉ लगेगा ना? हाँ, हर केस में जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं सभी में लेंज लॉ लगेगा। और बेसिक चीज़ क्या समझिएगा आप, कि आप लोगों को फ्लक्स अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो किस तरीके से फ्लक्स डिक्रीज़ हो सकता है। तो फ्लक्स डिक्रीज़ होने का तरीका अगर करंट के सेंस में पूछ रहा है तो आपको ये देखना है कि इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा कि जो ऑलरेडी फील्ड प्रेजेंट है उसको अपोज करेगा। अगर फील्ड की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है तो वो फील्ड को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, और फील्ड की वजह से अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो करंट फील्ड को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोगों को ना दिखाऊँ, आप केवल क्वेश्चन पढ़ें। देखिएगा, आप में से कोई इस क्वेश्चन को पढ़ेगा? मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन क्या ऐसे दिख रहा है कि आप पढ़ सकें। ईशा पढ़ो बेटा। तो A bar magnet falls from height h through a metal ring as shown in figure. Will its accelerate be equal to g? What will happen if the ring in the above case is cut so as not to form a complete loop? जस्टिफाई योर आंसर। यानी स्क्रीन तो आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है और आप समझ भी पा रहे हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें देखिए क्या है कि एक बार मैग्नेट है और एक रिंग है। रिंग के अंदर बार मैग्नेट को जो है के अंदर से पास किया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विल इट्स एक्सेलरेशन बी इक्वल टू जी। अगर रिंग ना हो और बार मैग्नेट को आप ड्रॉप करें तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन रिंग हो जाने से ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जैसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब ये मैग्नेट रिंग के पास में आएगा तो रिंग के से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ करेगा, और जब फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा तो रिंग में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। यस और नो? यस सर। होगा। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये मैग्नेट के डाउनवर्ड फ्लो को या डाउनवर्ड फॉल को अपोज करेगा। तो आपने देखा कि ये केवल ग्रेविटी के फोर्स की वजह से नहीं जा रहा है, बल्कि ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इंडक्शन या इंड्यूस्ड करंट की वजह से एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि रिंग का ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बन जाएगा और नीचे वाला फेस साउथ पोल की तरह बन जाएगा। तो जब ये रिंग में घुसने के लिए जैसे ही जाएगा तो रिंग इसकी मोशन को अपोज करेगा, तो नेट फोर्स ग्रेविटी फोर्स से कम हो जाएगा। तो दिस विल मूव डाउनवर्ड्स above the ring with acceleration less than acceleration due to gravity। अब सपोज ये रिंग से नीचे की तरफ आ गया और अब रिंग से नीचे की तरफ जा रहा है, तब भी क्या ये जी के एक्सेलरेशन से जाएगा या फिर जी से ज़्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा या जी से कम एक्सेलरेशन से जाएगा? तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, और मैं चाहूँगा कि इसका आंसर चलो दीपक से ही पूछ लेते हैं। दीपक बताओ बेटा, जब ये रिंग से पास कर जाएगा और रिंग से पार होके नीचे की तरफ जाएगा तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या ये जी के इक्वल होगा, क्या जी से कम होगा या जी से ज़्यादा होगा? दीपक बताइए बेटा। आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर करें। नहीं आता है बोल दीजिए कि नहीं आता है सर। दीपक राणा,
क्या आपने मैसेज किया है? डोंट नो, ओके ठीक है। ज्योति आप बताओ बेटा। मैसेज कर दो ज्योति, आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, पता नहीं। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। जब ये रिंग से नीचे निकल जाएगा, आप देखिएगा साउथ पोल इसका रिंग से दूर जाएगा, दूर जाएगा तो इस समय फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा, और फ्लक्स डिक्रीजिंग होने से क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। अब इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगी उसका नेचर क्या होगा? साउथ पोल दूर जा रहा है तो इंड्यूस्ड करंट्स ऐसे प्रोड्यूस करेगी कि वो साउथ पोल को नज़दीक लाए। दैट मीन्स वो मैग्नेट को ऊपर की तरफ खींचेगी, और ग्रेविटी की वजह से मैग्नेट नीचे की तरफ जा रहा है। अब इस केस में भी जो भी इंड्यूस्ड करंट है वो मैग्नेट के नीचे के मोशन को अपोज करेगी, तो इफ़ेक्टिव फोर्स ग्रेविटी फोर्स से कम हो जाएगा, और अब मैग्नेट अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। देन ये सॉल्यूशन सारे आपके पास हैं। देन इसमें क्या सॉल्यूशन लिखा हुआ है सेकंड केस में? सेकंड केस है क्या एग्जैक्टली? व्हाट विल हैपन इफ द रिंग इन द अबव केस इज कट इनटू एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट लूप? जस्टिफाई योर आंसर। ओके, जब ये लूप के फॉर्म में कट कर जाएगा, तो जब कट हो जाएगा तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड बट नो इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। आई होप ये क्लियर होगा। आपने इसको कट कर दिया तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ओके, समवन इज राइटिंग लेस देन जी इक्वल टू ग्रेविटी। नहीं बेटा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो सेकंड केस के लिए नहीं था, वो फर्स्ट केस के बाद एक और कंडीशन मैंने क्रिएट की थी कि अगर ये बार मैग्नेट जैसे ऊपर से रिंग में जा रहा है, अगर ये बार मैग्नेट रिंग में से निकल के और रिंग से नीचे की तरफ जाने लगे तब एक्सेलरेशन क्या होगा? तो उसके लिए आंसर होगा इट इज़ स्टिल लेस देन जी। बट अगर रिंग को आपने कट कर दिया तब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही नीचे जाएगा। रीज़न, इंड्यूस्ड करंट तो प्रोड्यूस होगा लेकिन सर्किट ओपन हो गया, करंट पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सेकेंड केस में, इस क्वेश्चन के सेकेंड केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल एक्सेलरेशन से ये जाएगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन जो है इससे डिफरेंट था। सेकेंड वाला पॉइंट इस क्वेश्चन का नहीं था, वो अलग था। रिकॉर्डेड वीडियो में आपको जो है जब आप इसको दोबारा सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास एक स्ट्रेट वायर का कंडक्टर है, इसमें करंट अप साइड जा रहा है, एक्स डिस्टेंस पे दो लूप्स हैं, एक वर्टिकल अलाइनमेंट में और दूसरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है, और दोनों लूप्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो पूछा गया है कि इनमें लूप्स में करंट की डायरेक्शंस क्या होंगी। बाहर की तरफ जाने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ कर रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये फ्लक्स को इंक्रीज़ करेंगे। अब राइट साइड में जो है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो यहाँ पर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है तो सेंस ऑफ करंट कैसा होगा? ऐसा होगा कि वो फील्ड को इंक्रीज़ करे एंटी क्लॉकवाइज। और सेकेंड वाले केस में, तो फर्स्ट केस किधर है? लेफ़्ट की तरफ है। लेफ़्ट में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड दूर जाने पे कम हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात मैं कर रहा हूँ, कर्सर देखिएगा इसके लिए। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से पॉइंटेड होगा, यानी बाहर की तरफ होगा, तो इसमें करंट भी ऐसी प्रोड्यूस होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे, क्योंकि दूर ले जाने पे फ्लक्स कम हो रहा है। तो इसमें 1 वाले में एंटी क्लॉकवाइज और 2 वाले में क्लॉकवाइज। शिवम बड़ी देर में ज्वाइन किया बेटा। शिवम पुंडीर से बात कर रहा था मैं, बहुत देर में ज्वाइन किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक आपके जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं। देन ये दोनों क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फिगर शोज एन इंडक्टर एंड अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच। द रेजिस्टेंस आर इज सेम एज दैट ऑफ कॉइल दैट मेक्स एल। दोनों के रेजिस्टेंस क्या हैं? सेम है। तो इस केस में विच ऑफ द बल्ब लाइट्स अप अर्लियर व्हेन एस इज क्लोज्ड
and will the two bulbs be equally bright after some time? Give reason for your answer. Bulb B2 lights up earlier. B2 यानी कौन सा? रेजिस्टेंस के साथ वाला, ये पहले जल जाएगा. क्यों? क्योंकि L में क्या होगा? करंट इंड्यूस होगी, वो इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा. रीज़न देखते हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस L अपोजेस ग्रोथ ऑफ करंट इन B1. देयरफॉर रेजिस्टेंस में कोई अपोजिशन नहीं है, तो B2 पहले जल जाएगा, ऑन हो जाएगा, और B1 बाद में ऑन होगा. सेकेंड क्वेश्चन था विल द टू बल्ब्स बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. येस, डेफिनेटली. दोनों के रेजिस्टेंसेस सेम हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों में सेम करंट जाएगी, और बल्ब में अगर सेम करंट आएगी तो हीट प्रोड्यूस्ड दोनों में सेम होगी. कुछ देर बाद तो मैक्सिमम करंट आई जाती है इंडक्टर में, शुरू में ही वो अपोज करता है, जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इन AC इज E0. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन जैसे 14th नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. नाउ दिस इज 15th क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. आपके पास कैलकुलेट द, हमारी क्लास कितने बजे तक है बेटा? 11:50 तक ही है. ओके, मैं 5 मिनट और ले रहा हूँ, इसके बाद हम लोग ऑफ करेंगे. देखिए, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर की करंट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में RMS वैल्यू पूछी गई है. तो 3 करंट्स हैं, एक I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर. फर्स्ट वाली क्या है? 2 एम्पियर है, इधर -2 एम्पियर है, और फिर से क्या है? 2 एम्पियर है. 3 इंटरवल्स हो गए ये. पहला पॉजिटिव हाफ, दूसरा नेगेटिव हाफ, तीसरा पॉजिटिव हाफ. तो मैक्सिमम करंट्स हैं I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, इनका एवरेज, और इस एवरेज का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दीजिए. यू विल गेट द RMS वैल्यू. देन ये मैं आपको लेक्चर के टाइम पे ही डिस्कस किया था मैंने, कि एक्सेल और एफ में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, प्राइमरी का है, तो ये आपका जो है एक्सेल और एफ का ग्राफ लीनियर होगा. इसी तरीके से कैपेसिटर के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये जो है एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, और आपके पास जो है कर्व्ड लाइन आएगी. देन क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उसी तरीके से 19th भी है. देन पावर फैक्टर के बारे में क्वेश्चन है, चलिए एक ये डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज़ 0.5. व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट? तो पावर फैक्टर यानी cos फाई की वैल्यू कितनी है? 0.5. तो cos फाई इक्वल टू 0.5, देयरफॉर फाई इक्वल्स टू 60 डिग्री. बहुत आसान से ईजी से क्वेश्चन हैं ये. देन इन अ सीरीज LCR सर्किट VL इक्वल्स टू VC. देखिए, सीरीज LCR सर्किट है, तो VL और VC सेम होने का मतलब क्या है? VL इज़ I इंटू XL एंड VC इज़ I इंटू XC. सीरीज सर्किट है तो I की वैल्यू सेम होगी, तो XL और XC इक्वल हो जाएंगे, और XL और XC इक्वल हुए तो रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी. एंड एट रेजोनेंस पावर फैक्टर इज़ 1. तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, देयरफॉर पावर फैक्टर विल बी 1. ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं. Z की वैल्यू क्या होगी? R के इक्वल, एज वी नो cos फाई इक्वल्स टू R बाई Z. cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? R बाई Z. तो R बाई Z इक्वल्स टू R बाई R विच इज इक्वल्स टू 1. नाउ दिस क्वेश्चन, in a AC circuit the instantaneous voltage and current are shown as 200 sin 300t volt and I equal to 8 cos 300t ampere respectively. Is the nature of the circuit is capacitive or inductive? कैसे पता करेंगे? आपको दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. एक cos थीटा है, दूसरा sin थीटा है, तो जाहिर सी बात है कि cos थीटा और sin थीटा होने की वजह से π/2 का फेज डिफरेंस हो जाएगा, और करंट लीड्स द वोल्टेज, देयरफॉर the circuit is capacitive one. Then other questions हैं, या आप डिस्कस देखिएगा, आंसर्स मिलेंगे आपको. ये क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके NCERT टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज एग्जाम्पल में भी दिया गया है. ये आप करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 25 कल डिस्कस किया था हमने. आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. और इसके वीडियोस और ये फाइल मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी है,
वीडियोस में इसका जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज दूंगा आज के लेक्चर का। और अब 2 दिन आपका मैं टेस्ट रखना चाह रहा हूँ, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। थर्सडे को तो क्लास नहीं है हमारी 12th में। थर्सडे को कोई क्लास नहीं है, तो वेडनेसडे को एक टेस्ट होगा और एक टेस्ट आपका जो है फ्राइडे को होगा। वेडनेसडे का टेस्ट जो आपका होगा ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट का होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, वेडनेसडे को मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट का टेस्ट लिया जाएगा आपका। 20 क्वेश्चंस में MCQs दूंगा, जैसे कि गूगल फॉर्म में दिए ही जाते हैं। नाउ यू कैन लीव योर क्लास। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. ओके।